Hello everyone. Again, I welcome you all to the class, and this is me, Ankita. So, today we are starting with new unit, new chapter, and that is biomolecules. Okay, the chapter is very interesting and again, it is very important from examination point of view also. Okay, so in this unit, we will firstly discuss what are biomolecules in general, and then we will see each biomolecule in detail. Okay. So, biomolecules, as the name itself says something, right? Bio indicates life. So, these are the molecules which is present in living beings, right? Which is present in life. Okay. Now, as we all know, that cell is the basic unit of life. Okay. Now, in this cell, there it has very complex structure, right? The cell has very complex structure, though it is a basic unit of life. It has a very complex structure, and in this cell there are several lifeless molecules are present, right? In this cell there are several lifeless molecules are present, which are responsible or which performs particular functions. Okay, which performs particular function. Now, these molecules which performs particular function or which is responsible for the biological reaction or which control biological reactions, that molecules are biomolecules. And remember, though they help the living beings to grow, sustain and reproduce life, okay, but itself they are lifeless. उनकी खुद की कोई life नहीं है. Okay, they support life, but the biomolecules खुद में they are lifeless. Okay, now this molecules which is present in cell, they are of two types, like they are organic molecules and they are inorganic molecules. Okay, inorganic मतलब there can be water or ions present हो सकते हैं. Okay, minerals present हो सकते हैं. All these molecules comes under inorganic part. फाइन. नाउ व्हाट आर ऑर्गेनिक देन? ऑर्गेनिक क्या होगा फिर? ऑर्गेनिक मतलब प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, राइट, लिपिड्स हो सकते हैं, देन न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं. न्यूक्लिक एसिड मतलब दे कंटेन डीएनए, आरएनए. ओके, देन अमीनो एसिड हो सकता है, देन पॉलीसैकेराइड्स हो सकता है, देन मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं. ठीक है, ऑल दिस आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच कम्स अंडर ऑर्गेनिक. ओके. So biomolecules, if we talk about the definition of biomolecules, what is biomolecules? Then biomolecules are the lifeless molecules which combine in specific manner to produce life. Okay, they arrange in such a way that they produce life or they support life, fine, or control biological reactions. So these are biomolecules. Now, we can say that on the basis of molecular weight, biomolecules can be divided into two types. The first type is based on the molecules which has molecular weight less than 1000 daltons. Okay, less than 1000 daltons, जिसका molecular weight 1000 daltons से कम है, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स. और दूसरे जिनका molecular weight 1000 dalton से ज़्यादा है. Okay, so the molecular weight of the biomolecules is less than 1000. Okay, that molecule or that biomolecule is known as micromolecules. उनको क्या बोला जाता है? Micromolecules. Fine. एंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा है उन्हें बोला जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स. फाइन. सिंपल मॉलिक्यूल्स भी है माइक्रो मॉलिक्यूल्स में. फाइन. सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमें पढ़ने हैं इन दिस यूनिट. वी विल फोकस ऑन 4 main type of macromolecules, and that is carbohydrate, protein, nucleic acid and lipids. ओके, एक्चुअली इफ वी टॉक अबाउट, मतलब अगर हम परफेक्टली मॉलिक्यूलर वेट की बात करें
तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होता है, तो जनरली इट कम्स अंडर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके। बट हम इसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में इसीलिए पढ़ते हैं बिकॉज वी परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस। तो उसमें हमने देखा कि जब हम आपके लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं विथ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, तो हमें दो चीज़ मिलती है, एक होता है फिल्ट्रेट और एक होता है इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, राइट, इनसोल्यूबल कंपाउंड्स। तो जो इनसोल्यूबल होता है ना, उसमें ये चारों प्रेजेंट होते हैं, ये चारों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो फिल्ट्रेट होता है उसमें होता है वाटर, मिनरल्स, विटामिन, ओके। सो दैट्स व्हाई माइक्रोमोलिक्यूल्स में हम ये चारों चीजें पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, फाइन। Now, what are the functions of biomolecules? What is the importance of biomolecules? हमें क्यों पढ़ना है, right? तो आपने देखा होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, one should take a balanced diet, right? एक proper life के लिए हमारी बॉडी एक प्रॉपर फंक्शनिंग करनी चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए, जिसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए होता है, राइट। बैलेंस डाइट मतलब इट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होना चाहिए, लिपिड्स होने चाहिए, राइट, वाइटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। सो ऑल दिस इज दैट इम्पोर्टेंट, ओके। नाउ व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? तो इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वी आर एबल टू वर्क, हम काम कर सकते, क्यों कर सकते हैं? अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो काम करोगे क्या? नहीं कर सकेंगे हम काम, राइट। सो दैट इज possible only because of carbohydrate. They are providing us the energy to perform work, right? Proteins, प्रोटीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन में होते हैं, हेयर्स में होते हैं, नेल्स में होते हैं, राइट। अगेन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मसल्स में होते हैं, ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, also some of the proteins they act as an enzyme to carry out the particular biological reactions, okay। consider आपने खाना खाया है, we have taken a food, okay, हमारे मिल लिया हमने, मिड डे मील, और उसके बाद अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है हमारे बॉडी में, प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है हमारे बॉडी में, तो जो एक बाइट हमने लिया है उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए इट टेक नियर अबाउट 1000 years, राइट। अगर ये एंजाइम्स नहीं होते तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, जो एक बाइट हमने लिया है ना, वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। Nucleic acid, DNA, RNA. What is the function of DNA and RNA in our body? Of course, they store genetic information, right? They are responsible for the transfer of characters from parents to the offspring, right? They are responsible for the protein synthesis. They help in protein synthesis. Lipids का काम क्या है? Again, lipid is a source of energy, long term of energy हमें provide करता है लिपिड। लिपिड is also responsible for the protection, सेल के मेम्ब्रेन में present होता है, right? It is also act as insulators, right? Shock absorb करता है lipids, fine. So these are the very important role played by the biomolecules, fine. So now we will discuss each of these four macromolecules in detail. Fine. Now there is one more branch of chemistry that is known as biochemistry. उसे बोला जाता है biochemistry, and this is the branch of chemistry which deals with the study of biomolecules. ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किसकी स्टडी से डील करती है? बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी से. सो दिस इज अ सेपरेट ब्रांच, ओके, टू स्टडी बायोमोलिक्यूल्स. तो आप देख सकते हो ये टॉपिक कितना वाइड है, ओके. बट हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो वी विल डिस्कस दैट पार्ट ओनली, ओके, दैट फोर माइक्रो molecules. The biomolecules, the topic in itself is very wild, okay. आप देख सकते हो एक पूरी की पूरी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, फाइन, ओके. So let's start with the first macromolecule, that is carbohydrate. आपने सुना होगा कार्ब्स, ओके. बहुत लोग डाइट होते हैं, डाइट पे रहते हैं या फिर डाइट फॉलो करते हैं, और डाइट बहुत तरह के होते हैं. तो आपने एक सुना होगा लो कार्ब डाइट, राइट. लो कार्ब डाइट मतलब कार्ब का इंटेक कम कीजिए,
फाइन, मतलब ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाइए, ज़्यादा प्रोटीन रिच चीज़ें खाइए। तो कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स भी बोला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? अभी ये नाम क्या बता रहा है? कार्बो, कार्बन, राइट, हाइड्रेट्स, राइट, वाटर, so they are hydrates of carbon. Carbohydrates are nothing but hydrates of carbon. ओरिज मतलब अर्लियर टाइम्स में इसको ऐसे ही बोलते थे कि कार्बोहाइड्रेट आर नथिंग बट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला दिया गया था, CxH2O/Y। ओके, तो जो भी सब्सटेंस, जो भी मॉलिक्यूल ये फॉर्मूला ओबे करेगा, ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, दे आर कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो यहाँ पे, or we can also say that carbohydrates are the class of compounds which mainly contain carbon, hydrogen and oxygen। ठीक है, जिसमें ये तीनों एटम्स हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। ओके, in which hydrogen and oxygen is present in same ratio as they are present in water। okay, fine, as they are present in water। so इसीलिए ये फॉर्मूला बना गया था CxH2O/Y। फाइन, सो अभी आप देख सकते हो ग्लूकोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया ना, दिस इज ग्लूकोज। तो अभी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, राइट। अभी you can see कि glucose is obeying this formula, right। अभी देखो C6 हो गया, X is equals to 6 and Y is equals to, Y is also equals to 6, तो X and Y is equals to 6। ओके, फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला है C6H12O6, राइट। तो अगेन it is hydrate of carbon, but there are certain limitations to this definition, right। Hydrates of carbon, or the class of compound which mainly contain carbon, hydrogen and oxygen, whereas for most of the time this is correct, but to say that ki hydrogen and oxygen are present in same ratio as they are present in water molecule, is there are certain limitation to that। okay, ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये जो ग्लूकोज और सुक्रोज हम बोलते हैं ना, कि जो ओबे कर रहे थे अभी फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था? CxH2O/Y, राइट। सो वी आर सेइंग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स मतलब क्या होता है? हैविंग फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, जहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। फाइन, second limitation is rhamnose and deoxyribose. They are sugars, they are carbohydrates. Okay, C6H12O5 is the molecular formula for rhamnose and C5H10O4 is the molecular formula for deoxyribose। तो आप इस फॉर्मूला से देख सकते हो कि they are not obeying this formula, general formula। CxH2O/Y इस फॉर्मूला को ये रैमनोज और डीऑक्सीराइबोज ओबे नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, राइट, बट स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। अभी ये जो कंपाउंड्स है, फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटिक एल्डिहाइड, दे ओबेइंग दिस फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, बट वो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं हो सकते ना, राइट। सो दैट्स व्हाई द डेफिनेशन दैट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन is quite like we can say it is not applicable everywhere। fine, so the new definition came, that is carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone। they are optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketone, or they are the compounds that on hydrolysis give or produce polyhydroxyaldehyde और polyhydroxyketone। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव हमने पहले ही पढ़ लिया है कि क्या होते हैं, राइट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, या फिर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ कीटोनिक ग्रुप है। फाइन, या फिर ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको
कोई ऐसा कंपाउंड दे रहे हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है. फाइन. सो ऐसे कौन से, देयर आर नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल लाइक ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, राइट. ऑल दिस आर carbohydrates. Carbohydrates are also known as saccharides. कार्बोहाइड्रेट का और नाम है दैट इज सैकराइड्स, ये याद रखना. फाइन. सैकराइड इज नथिंग बट दे आर carbohydrate. Okay, so I hope this much is clear to everyone of you. कार्बोहाइड्रेट की पहले की डेफिनेशन क्या थी, नई डेफिनेशन क्यों आई, बिकॉज देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू योर अर्लियर डेफिनेशंस, right? A new definition is very much important, that carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone, or the compounds which on hydrolysis give polyhydroxyaldehyde or ketones. Okay, now there is a classification of carbohydrate. Now carbohydrate is classified on the basis of hydrolysis product. ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद आपको कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे उस बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है. फाइन. सो देयर द टू classified carbohydrate is further classified in two types. First one is simple carbohydrate, okay, and second one is complex carbohydrate. ठीक है, complex carbohydrate. Now simple carbohydrate is nothing but it is monosaccharide. Simple carbohydrate is nothing but it is monosaccharide. Mono matlab one, right, and saccharide matlab sugar, carbohydrates. Okay, so monosaccharide क्या होता है? Monosaccharide is the basic unit of carbohydrate. This is the simplest carbohydrate. Monosaccharide is the simplest carbohydrate. This is the basic unit of carbohydrate. मतलब जो अगर कंसिडर हम बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, दैट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? वो मोनोसेकेराइड से बना है, राइट. सो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो इफ समवन आस्क यू व्हिच इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो यू reply monosaccharides. Okay, and as I said, this classification is based on the hydrolysis, right. ये हाइड्रोलिसिस पे डिपेंड है कि हाइड्रोलिसिस के बाद आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा. सो monosaccharide do not undergo hydrolysis. Okay, they cannot be hydrolyzed further into smaller units. This thing you have to remember. मोनोसेकेराइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है बिकॉज मोनोसेकेराइड इज इटसेल्फ अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर यूनिट्स. फाइन. So this is monosaccharide. Okay, next is complex carbohydrate. And in complex carbohydrate, which is further divided into two parts, first one is oligosaccharide and next one is polysaccharides. Okay, तो ओलिगोसेकेराइड क्या है? ओलिगोसेकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस yield 2 to 10 monosaccharide unit. 2 to 10 monosaccharide unit. ठीक है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस के बाद विच कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज, मतलब जिसका हाइड्रोलिसिस हम कर सकते हैं, लेकिन उसके हाइड्रोलिसिस के बाद हमको कितने मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगे? हमको 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट मिल सकते हैं. ओके, मतलब अगर कोई शुगर आपको दी और आपने उस शुगर को हाइड्रोलाइज किया तो आपको कितने मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगे? तो आप उसको ओलिगोसेकेराइड बोलोगे. आप बोलोगे अच्छा, the monosaccharide unit which we get is in between 2 to 10, then it is oligosaccharide. Okay, so there are again it is classified into different types, that is disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, depending on the number of monosaccharide unit which we obtain after hydrolyze the
ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। अगर आपको ओलिगोसेकेराइड के हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिले तो आप क्या बोलोगे, इट इज डाइसेकेराइड। इफ इट इल्ड 3 मोनोसेकेराइड यूनिट देन इट इज ट्राइसेकेराइड। अगर 4 मिले तो इट इज tetrasaccharides. Okay, now what is polysaccharide then? Polysaccharide is a carbohydrate which on hydrolysis yield large number of monosaccharide unit. Large number of monosaccharide, large मतलब the number may be in thousands, ठीक है, 100 से लेके it can be up to 3000. okay, अगर इतना प्रेजेंट है, इतने यूनिट्स आपको मिल रहे, इतने मोनोसेकेराइड यूनिट अगर आपको मिल रहे ऑन हाइड्रोलिसिस तो इट इज पॉलीसेकेराइड। इसके एग्जांपल कौन से हैं, स्टार्च, सेलुलोज। ओके, नाउ सी हियर दिस आर द सिंपल बॉल्स दैट वी कॉल एज मोनोसेकेराइड। अच्छा, अगर ये दो बॉल मिला दो तो क्या बन जाएगा, डाइसेकेराइड बन जाएगा। अगर 3 आ गए इसमें तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइसेकेराइड हो जाएगा। अगर 4 आ गए तो टेट्रासेकेराइड हो जाएगा, राइट। और ऐसे अगर इसमें 1000 यूनिट्स आ गए, 100 यूनिट्स आ गए, 1000 यूनिट्स आ गए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। ओके, सो द क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल। Carbohydrate is further classified on the basis of hydrolysis product. Okay, the first is simple carbohydrate, next is complex carbohydrate. Simple carbohydrate is nothing but it is monosaccharide, which is the simplest carbohydrate and the basic unit of carbohydrate. Now what is monosaccharide, definition आ सकती है, define monosaccharide, तो आप क्या लिखोगे, the carbohydrate which cannot be hydrolyzed further into smaller units, ठीक है, which cannot undergo hydrolysis into smaller units, so that is monosaccharide. Okay, now oligosaccharide क्या है, the carbohydrate which on hydrolysis yield 2 to 10 monosaccharide units. Okay, polysaccharide, the carbohydrate which on hydrolysis yield large number of monosaccharide unit. तो polysaccharide के example क्या है, starch and cellulose, glycogen. ओके, ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल्स हम देखेंगे, बट उससे पहले वी विल सी द मोनोसेकेराइड। दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब मोनोसेकेराइड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, और दूसरा इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि कैसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस बेसिस पे। ओके, सो आई होप डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। मोनोसेकेराइड का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज याद कर लीजिए, द कार्बोहाइड्रेट, इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट and it cannot be hydrolyzed further into smaller units, or which cannot be hydrolyzed further to give smaller units. Okay, so next is classification of monosaccharide on the basis of number of carbon atom, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप था वो भी यही पे एक्सप्लेन कर देंगे हम। on the basis of functional group they are classified in two types, right? First one is aldosis and second one is ketosis. Okay, if the monosaccharide unit contain the aldehydic functional group then it is called as aldosis, ठीक है। अगर आपके मोनोसेकेराइड में अल्डेहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे अल्डोसिस। ओके, और अगर मोनोसेकेराइड में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो देन इट इज नोन एज कीटोसिस, ठीक है। तब आप उसको क्या बोलोगे, कीटोसिस बोलोगे। and this aldosis and ketosis they are further classified on the basis of number of carbon atom present in them, ठीक है। तो अगर आपके मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, लुक हियर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे ट्रायोस, ट्रायोसिस। ओके, अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है
तो क्या बोलोगे? टेट्रोसिस. If there are 5 carbon atom, then it is pentosis. If 6 carbon atom, then it is hexosis. Okay, so now here are the some example. अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन आइटम तो 3 प्रेजेंट है, लेकिन if it contain aldehydic functional group, the monosaccharide which has 3 carbon atom but the functional group is aldehyde. Okay, सो वो कौन सा हुआ? दैट इज ग्लिसरा अल्डेहाइड. वो कौन सी शुगर हुई? दैट इज ग्लिसरा अल्डेहाइड. लेकिन उसी में कार्बन आइटम 3 है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटो है. ओके, तो इट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. इट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ओके, सो अभी जब आप ये ट्रायल्स पढ़ रहे हो इन केस ऑफ अल्डोसिस एंड कीटोसिस, तो इन ट्रायल्स के पीछे ना, इन ट्रायल्स के पहले प्रीफिक्स लग जाता है, दैट इज अल्डो ट्रायल्स. अल्डो ट्रायल्स का एग्जांपल क्या है? ग्लिसरा अल्डेहाइड. अल्डो ट्रायल्स मतलब, अल्डो का मतलब इट कंटेन अल्डेहाइडिक ग्रुप. ट्रायल्स का मतलब इट हैज 3 कार्बन आइटम. ठीक है, मोनोसैकेराइड है जिसमें कितने कार्बन आइटम है? 3 कार्बन आइटम है. तो एग्जांपल कौन सा हुआ? ग्लिसरा अल्डेहाइड. कीटो ट्रायल्स. कीटो ट्रायल्स मतलब कीटो का कीटोनिक ग्रुप है. ट्रायल्स मतलब 3 कार्बन आइटम है, राइट? एंड इट हैज एग्जांपल कौन सा हुआ? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. फाइन. ये जो है ना आपके स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज वेरी सिंपल. जस्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना ना, CxH2O/Y. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है. C3H6O3, राइट? देन टेट्रोसिस के लिए बात करते हैं. अभी अल्डो टेट्रोसिस होगा. अल्डोटेट्रोसिस. अल्डोटेट्रोसिस मतलब अल्डेहाइडिक ग्रुप हैविंग 4 कार्बन एटम. ओके, तो एग्जांपल कौन सा है? इरिथ्रोस एंड थ्रियोस, जिसमें कितने कार्बन एटम है? 4 कार्बन एटम है. और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डेहाइडिक है, राइट? कीटोटेट्रोस में क्या होगा? कीटोटेट्रोस में जी फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन होगा और कार्बन आइटम कितने होंगे? 4 कार्बन आइटम होंगे. एग्जाम्पल क्या है? इरिथ्रोस, इरिथ्रुलोस, राइट? तो ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन. देन नेक्स्ट इज पेंटोज, मतलब जिसमें 5 कार्बन आइटम है. C5H10O5. ओके, तो अल्डोसिस में क्या होगा? इट इज अल्डोपेंटोज. अल्डोपेंटोज. तो राइबोज है, जाइलोज है, अराबिनोज है, राइट? ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्डोपेंटोज. अल्डो मतलब अल्डेहाइडिक ग्रुप, पेंटोज मतलब 5 कार्बन आइटम, राइट? देन कीटोपेंटोज भी होगा, दैट इज राइबुलोज. राइबुलोज इज द एग्जांपल ऑफ कीटोपेंटोज, मतलब कीटोनिक ग्रुप और 5 कार्बन, राइट? देन हेक्सोसिस आर देयर, जिसमें कितने कार्बन आइटम होते हैं? 6 कार्बन आइटम होते हैं. अगर 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट है और उसमें से अल्डेहाइडिक ग्रुप है, तो क्या होगा? इट इज अल्डोहेक्सोस. क्या होगा? अल्डोहेक्सोस. एग्जाम्पल ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ऑल दिस आर अल्डोहेक्सोस. तो याद रखना, ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज अल्डोहेक्सोस. क्यों? क्योंकि उसमें 6 कार्बन आइटम है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डेहाइड है, राइट? फ्रुक्टोज इज ऑल्सो नोन एज कीटोहेक्सोस. क्यों? क्योंकि कीटोनिक ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप and it has 6 carbon atom. Okay, so this is the classification of monosaccharide. First one is based on the functional group which is present. So there are 2 types, aldosis and ketosis. Aldosis मतलब aldehydic group है, ketosis मतलब ketonic group है. And next is on the basis of number of carbon atom present. Okay, तो उसके बेसिस पे we have triose, tetros, pentos and hexose. ठीक है? So I hope this much is clear. Classification of monosaccharides are clear. Definition of monosaccharide is clear to everyone, right? Okay. So here it is. So this is all about the monosaccharide. Okay. Fine. So here are the some structures. Okay. अभी देखो ये ट्रायोज है, C3H6O3 है ना, और ये अल्डोसिस है. अल्डोसिस है मतलब ये देखो यहाँ पे आपका अल्डेहाइडिक ग्रुप है CHO,
है ना, दिख रहा है आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप हर जगह CHO, राइट। अभी अल्डो ट्रायोस का एग्जाम्पल क्या था, ग्लिसराल्डेहाइड था, राइट। तो देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और कितने कार्बन आइटम है, 1 2 एंड 3, राइट। नेक्स्ट इज योर राइबोस। राइबोस किसका एग्जाम्पल था, पेंटोस का, राइट। तो कितने कार्बन आइटम है यहाँ पे, 5, 1 2 3 4 एंड 5. So these are the things which you have to keep in mind. Then glucose and galactose, they are aldohexose, right? 1 2 3 4 5 6, right? 6 carbon atom including your aldehydic carbon atom, right? aldehydic carbon atom या carbonyl carbon atom को अलग नहीं छोड़ना है आपको, उसको include करके your number of carbon atom, okay? देन कीटोसिस में हमने पढ़ा था जिसमें 3 कार्बन आइटम होते हैं, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 1 2 3. तो देखो ये वाला है आपका कीटोनिक ग्रुप, राइट। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, दैट्स व्हाई इट इज कम अंडर कीटोसिस. एंड दिस इज योर 1 2 3 4 5 ketopentose, right? And this one is your ketohexose. Example क्या है, fructose. Here it is 1 2 3 4 5 and 6. ओके, तो याद रखना सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है इन केस ऑफ कीटोहेक्सोस. और कीटो अल्डोहेक्सोस में इट इज कार्बोनिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट फर्स्ट नंबर, ओके, फर्स्ट पोजिशन. तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस इट आउट एंड मेमोराइज इट, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसेकेराइड. आई होप मोनोसेकेराइड इज क्लियर टू एवरीवन. फाइन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी याद कर लेना. For glucose and fructose, it is C6H12O6, and for other like aldotriose, aldopentose, aldotetrose, it is C3H6O3 and C4H8O4, C5H10O5. It's very simple, okay. Next is oligosaccharides. Oligosaccharides क्या बोला था हमने, these are the carbohydrates which on hydrolysis yield 2 to 10 monosaccharide units, right? So depending upon the number of monosaccharide molecules, they are classified as disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharides, okay. So कितने मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाइड किया. तो कंसिडर आपको ओलिगोसेकेराइड दिया गया जिसके हाइड्रोलिसिस के बाद आपको मिले 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, राइट. तो आप उसको क्या बोलोगे, डाइसेकेराइड, ठीक है. इफ यू गेट 3 मोनोसेकेराइड यूनिट, देन ट्राइसेकेराइड. टेट्रासेकेराइड, this is the oligosaccharides which on hydrolysis yield 4 monosaccharide unit, okay. So disaccharide we will study it in detail. ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल है रैफिनोज, ठीक है. ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल है रैफिनोज. अभी रैफिनोज बना किससे है, रैफिनोज कौन से 3 मोनोसेकेराइड आपको देगा, तो रैफिनोज विल गिव यू ग्लूकोज, on hydrolysis it will give glucose, then fructose and then galactose, ठीक है. सो ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, अभी हमने देखा. fructose is also a monosaccharide and galactose is also a monosaccharide. तो ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल है रैफिनोज which on hydrolysis yield 3 monosaccharide units. कौन से 3 monosaccharide units है, it is glucose, fructose and galactose. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C18H32O16, ओके. टेट्रासेकेराइड का एग्जांपल है स्टैचियोज. Now this statues on hydrolysis yield 4 monosaccharide unit. कौन से glucose, fructose, galactose, 2 molecules of galactose, okay, glucose, fructose
and 2 molecules of galactose. गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 4 मोनोसेकेराइड यूनिट्स हो गए। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। फाइन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C24H42O21। फाइन। नाउ कमिंग टू डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के एग्जांपल हम सबको पता है, इट इज माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, द कॉमन शुगर विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, राइट। द स्मॉलेस्ट एंड द कॉमनेस्ट ओलिगोसेकेराइड्स आर डाइसेकेराइड्स। ये सबसे छोटे और सब मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड्स आर disaccharides. Okay, so now we will discuss in detail what are disaccharides. Okay, so disaccharide consists of 2 monosaccharide unit. They must be similar, they must be dissimilar. ठीक है, वो सेम भी यूनिट हो सकते हैं, वो डिफरेंट यूनिट भी हो सकते हैं। फाइन। नाउ माल्टोज, माल्टोज इज द डाइसेकेराइड, ठीक है। तो माल्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज माल्ट शुगर एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल साथ में आएंगे दैट इज माल्टोज। और जो माल्टोज है वो आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या देगा आपको, 2 ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सा है इसमें, ग्लूकोज है, दोनों ही। लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो कौन से 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे आपको ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज शुगर, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि लैक्टोज किससे बना है, माल्टोज में कौन से मोनोसेकेराइड इन्वॉल्व है, सुक्रोज में कौन से मोनोसेकेराइड्स इन्वॉल्व है। ओके, देन सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड एज केन शुगर, इट इज आल्सो नोन एज टेबल शुगर। ओके, so the sugar is found in sugar cane and sugar beet. Okay, now it is made up of glucose and fructose. ये कैसे बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है। सो शुगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड है, वैसे तो सारे ही डाइसेकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। So I hope this disaccharide is clear, definition is clear. Okay, the disaccharides on hydrolysis yield 2 monosaccharide unit which may be similar or dissimilar. Okay, now जब ये 2 monosaccharide units मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे डिहाइड्रेशन होता है और एक बॉन्ड बनता है जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक मतलब शुगर में बना है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फाइन। सो अभी देखिए, दिस वन इज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज यूनिट है और ये फ्रुक्टोज यूनिट है। फाइन, हमने दोनों को मिक्स किया तो देखो यहाँ से OH और यहाँ से आपका H, ये जो ब्लू पार्ट में आपको दिख रहा है ना OH एंड H, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O बाहर निकल गया। ओके, और यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड हो गया, ये देखो। ओके, सो ये क्या बन गया आपका सुक्रोज। और जब ये रिवर्स रिएक्शन होगी, जब यहाँ से यहाँ पे आप H2O ऐड करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा और ये जो बॉन्ड बना है ये फिर से ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH और यहाँ पे आएगा आपका H, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, राइट। नाउ माल्टोज, माल्टोज में कौन से 2 यूनिट है, ग्लूकोज ही है, दोनों यूनिट कौन सा है, ग्लूकोज है। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H. Now see this unit and this unit is same, right? ग्लूकोज बन गया। लैक्टोज में one is galactose and one is glucose. ओके, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो सेम चीज होगी H and OH. फाइन। तो ये डाइसैकेराइड्स हमको पढ़ना है इन डिटेल विद स्ट्रक्चर्स। सो जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब हम इसके डीप में जाएंगे। फॉर अ वाइल आपको समझ में आया कि कैसे हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ओके, so these are some monosaccharides, right? Glucose, fructose and galactose. Okay, then sucrose आपको
कैसे बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है। लैक्टोज कैसे बना है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना है। माल्टोज कैसे बना है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है, राइट। एंड देयर इज पॉलीसेकेराइड which yield large units of monosaccharides on hydrolysis, right? So glycogen, starch and cellulose, right, ये सारे पॉलीसेकेराइड्स है, ये चीज याद रखना। तो लुक, ये जो ग्रीन कलर का एक ब्लॉक आपको दिख रहा है, एक हेक्सागोन आपको दिख रहा है ना, ये ग्लूकोज है। तो ऐसे नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ऐसे थाउजेंड्स यूनिट जब साथ में आएंगे ना, एट दैट टाइम दैट इज पॉलीसेकेराइड। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस ब्रांच स्ट्रक्चर, एक लीनियर चेन है, ये उसको ब्रांच है, ये इसको ब्रांच है, तो दिस इज ग्लाइकोजेन। स्टार्च का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, स्टार्च में भी ग्लूकोज यूनिट्स ही होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज यूनिट्स ही होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज में भी ग्लूकोज यूनिट्स होता है, बट थोड़ा फॉर्म चेंज हो जाता है, वहां पे बीटा ग्लूकोज होता है, वी विल सी इट लेटर, ठीक है। तो यही चीज आपको याद रखनी है, इसमें और कुछ याद रखने लायक नहीं है। स्टार्च का फॉर्मूला होगा C6H10O5 by N, C6H10O5 by N, राइट, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रेजेंट है ना आपके, ओके। So this is the thing which you have to keep in mind, okay. So next is your again carbohydrate. There is one more classification of carbohydrate that is based on the solubility. वो किस पे based है, solubility पे। Now carbohydrate is classified in two types. First one is sugar and non-sugar on the basis of solubility. Now the carbohydrates which are soluble in water, sweet in taste and are crystalline in nature, they are known as sugars. आपने टेबल शुगर देखी है जो हम घर पे यूज करते हैं, राइट, वो क्रिस्टलाइन होती है, वो स्वीट होती है, वो पानी में सोल्यूबल हो जाती है, राइट। सो दैट आर शुगर्स। नेक्स्ट इज नॉन शुगर एंड दिस आर इंसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, दे आर इंसोल्यूबल इन वाटर, दे आर टेस्टलेस, ओके, एंड दे आर एमोर्फस। स्टार्च देखा है आपने, स्टार्च, आई होप सबने स्टार्च देखा होगा, राइट, इनसोल्यूबल होता है पानी में, पानी में सोल्यूबल नहीं होता। देन टेस्टलेस होता है, उसकी कोई टेस्ट नहीं होती। एंड एमोर्फस होता है, इट इज इन पाउडर फॉर्म, वहां पे कोई क्रिस्टल्स नहीं होते, ठीक है। सो दैट इज नॉन शुगर। तो आपको शुगर की डेफिनेशन पता चल गई, नॉन शुगर की डेफिनेशन पता चल गई। शुगर कौन से है, दिस आर द कार्बोहाइड्रेट विच आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, they are sweet in taste and they are soluble in water, right। non-sugar कौन से है, the carbohydrates which are amorphous, tasteless and insoluble in water. So now we will see the examples. कौन सी होती है sugar, all monosaccharides and oligosaccharides they are sugar. Glucose, fructose, maltose, lactose, sucrose, all these are sugars. They are sweet in taste, they are soluble in water. ग्लूकॉन डी पिया है आपने, ग्लूकोज शुगर होती है ना उसमें, राइट, सोल्यूबल होता है पानी में, ऑफ कोर्स सोल्यूबल होता है। सुक्रोज टेबल शुगर जो हम रेगुलर यूज करते हैं, अगेन दैट इज सोल्यूबल, ओके। माल्टोज सोल्यूबल है, लैक्टोज सोल्यूबल है। नाउ नॉन शुगर कौन सी है फिर, ऑल पॉलीसेकेराइड्स, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स है, लाइक स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, ऑल दिस आर नॉन शुगर, दे आर amorphous, tasteless and insoluble in water, okay। Now sugar are again classified into two types. First one is reducing sugar and second one is non-reducing sugar. तो अभी reducing sugar क्या होता है, reducing sugar which contain free carbonyl group, ठीक है, ऐसी शुगर जिसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है ना, अभी ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, वेदर इट कैन बी अल्डेहाइड और कीटोन, मतलब अल्डेहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, बट कार्बोनिल ग्रुप तो है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, वो फ्री होना चाहिए, वो बाउंडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर में फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, देखो यहाँ पे तो नहीं दिखेगा आपको, ये ऐसा, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ना, ये फ्री प्रेजेंट होना चाहिए,
ये ऐसा फ्री होना चाहिए, ठीक है। ये किसी के साथ बाउंडेड नहीं होना चाहिए। जब आप डाइसेकेराइड बोलते हो तो उसमें वो बाउंडेड हो जाता है, ओके। जब आप इस रिंग को ओपन करते हो ना, जब ये रिंग, अभी ये रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में है ग्लूकोज, जब आप इस रिंग को ओपन करते हो तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसका है, ये अल्डेहाइडिक कार्बन है, ये CHO ग्रुप है। देखो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये फ्री है, ओके। सो फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और ये क्या करती है, ऐसे वाले शुगर क्या करते हैं, दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट। एक फेलिंग सॉल्यूशन सॉल्यूशन होता है जिसमें दो तरह के सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, ओके। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है एंड रोशेल सॉल्ट का। तो ये शुगर उनको रिड्यूस करती है, ठीक है। तो कौन सी शुगर रिड्यूसिंग शुगर है, सारी अल्डोजेस एंड कीटोजेस, ओके। एग्जाम्पल माल्टोज, लैक्टोज, ऑल दिस आर व्हाट, रिड्यूसिंग शुगर, ओके। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी हुई फिर, जिसमें फ्री कार्बोनिल ग्रुप अपसेंट है, ठीक है। जिसमें फ्री कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बाउंडेड है, फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। So such sugar do not reduce Fehling solution and Tollens reagent, and the best example for non-reducing sugar is sucrose, ठीक है। sucrose is non-reducing sugar। reducing sugar कौन सी हुई, glucose, fructose, maltose, lactose, aldoses and ketoses, okay। all aldoses and ketoses, monosaccharide and disaccharide, fine, except sucrose, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज में जो है उसमें कार्बोनिल ग्रुप बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, definitions of carbohydrate, okay। And in next lecture we will discuss about the nomenclature, Fischer projection formula, and some reactions of glucose, okay, reactions of glucose to see some properties of glucose, fine। So this is all about today. I hope this much is clear to everyone. Please try to learn it in chart form only, इस mind map के जरिए ही इसे learn कीजिए, that will be more helpful, okay। So I hope this much is clear. If you have any doubt regarding anything, let me know in the comment section given below. And guys, if you are liking my videos, please like the videos, share it with your friends, okay, so that they can also be, they can also study well, okay। So thank you so much. See you in next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.